Good morning. As we know, I have been delivering lectures on hypothesis for a few days and continuing the same. Today I am going to discuss the various forms of hypothesis. By now we have learned that hypothesis is an integral and inseparable part of social research. Without the hypothesis formulation, without the formulation of a legitimate and proper hypothesis, a true social research cannot be imagined. अभी तक हम प्राकल्पना के बारे में जान चुके हैं कि प्राकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में विशेष महत्व है। प्राकल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए अनुसंधान का मार्ग तैयार करती है, उसको आगे प्रशस्त करती है और अनुसंधान के मार्ग को आसान करती है, अनुसंधान की प्रक्रिया को उसके लिए आसान बनाती है। हाइपोथेसिस के साथ ही एक अनुसंधान प्रारंभ होता है और हाइपोथेसिस के साथ ही अनुसंधान का समापन होता है। A research begins with a hypothesis, begins with the hypothesis and ends with the hypothesis. जब अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया जाता है तो एक अनुमान या अनुसंधान संबंधी जो पूर्व अनुमान है, उस अनुमान के साथ अनुसंधान कार्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रारंभ किया जाता है और जब अनुसंधान कार्य समाप्त होता है तो उस समापन के समय ये टेस्ट किया जाता है कि जो अनुमान अनुसंधान कार्य करने से पहले लगाए गए थे, घटना के बारे में, घटना के कारणों के बारे में, परिणामों के बारे में, अध्ययन क्षेत्र के बारे में, इकाइयों के बारे में, प्रविधियों के बारे में, वो अनुमान कितने सटीक और कितने सही निकले। आज हाइपोथेसिस विषय को ही आगे बढ़ाते हुए मैं इस व्याख्यान में हाइपोथेसिस के विभिन्न स्वरूपों या विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करूंगा। सो टुडे माय सोल कंसर्न, माय स्पेशल फोकस इज ऑन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। Generally, the hypothesis is said to be of 6 types. There are 6 forms of hypothesis. They are simple hypothesis, second complex hypothesis, then empirical hypothesis, null hypothesis which is denoted by H0, alternative hypothesis which is denoted by H1, logical hypothesis and then statistical hypothesis. प्राकल्पना के 6 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है, पहला प्रकार है सामान्य प्राकल्पना। प्राकल्पना का दूसरा स्वरूप है जटिल प्राकल्पना। प्राकल्पना का तीसरा स्वरूप है आनुभविक प्राकल्पना। चौथा स्वरूप है शून्य प्राकल्पना, जिसको H0 के द्वारा
प्रस्तुत किया जाता है। वैकल्पिक प्रकल्पना, जिसे H1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तार्किक प्रकल्पना और इसका अंतिम जो प्रकार है वो सांख्यिकीय प्रकल्पना। तो इस प्रकार से 7 इसके प्रकार प्रमुख रूप से हैं। सो बिफोर वी कम टू द फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस, let us once again keep in our mind about hypothesis that a hypothesis is an assumption, an idea that is proposed for the sake of argument so that it can be tested to see if it might be true. In the scientific method, the hypothesis is constructed before any applicable research has been done, apart from a basic background review. So, on this basis, we can say that hypothesis is the main basis. It's the spirit. It's the backbone, it's the pillar of research, without which no research, whether natural science research or social science research, is possible. Research is made possible only by hypothesis, and the formulation of hypothesis requires much sincerity, much understanding of the researcher. Now, as I have already discussed, there are the following 7, not 6, 7 types of hypothesis. Simple hypothesis, complex hypothesis, empirical hypothesis, null hypothesis, alternative hypothesis, logical hypothesis, and statistical hypothesis. ये प्रकल्पना के 7 प्रमुख प्रकार हैं। सामान्यतः 6 प्रकार बताए जाते हैं, परंतु मैंने यहाँ 7 स्वरूपों, 7 प्रकारों पर यहाँ पर फोकस किया है। प्रकल्पना के 7 स्वरूप हैं या प्रकार हैं: सामान्य प्रकल्पना, जटिल प्रकल्पना, आनुभविक प्रकल्पना, शून्य प्रकल्पना, वैकल्पिक प्रकल्पना, तार्किक प्रकल्पना और सांख्यिकीय प्रकल्पना। Now let us understand all these 7 forms of hypothesis one by one. The first form, the first type of hypothesis, which is very common, is a simple hypothesis. A simple hypothesis can be defined as a prediction of the relationship between 2 variables, the independent variable and the dependent variable. सामान्य प्रकल्पना का तात्पर्य या सामान्य प्रकल्पना को 2 चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों या होने वाले संबंधों की भविष्यवाणी के रूप में
प्रेडिक्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात सामान्य प्राकल्पना वह प्राकल्पना है जिसके द्वारा दो चरों के मध्य, दो वेरिएबल्स के मध्य क्या संबंध है, इसकी भविष्यवाणी की जाती है। ये दो चर हैं, स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल निर्भर चर। उदाहरण के लिए, ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स डेली लीड्स टू ओबेसिटी। मीठे पेय पदार्थों को पीने से मोटापा बढ़ता है। स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर। धूम्रपान कैंसर की ओर ले जाता है। हंगर लीड्स टू क्राइम। भूख अपराध की ओर, अपराधों की ओर ले जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू क्राइम्स। बेरोजगारी अपराधों की तरफ ले जाती है। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन। अभ्यास पूर्णता की ओर ले जाता है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में दो वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। उनके बीच क्या संबंध है? जैसे पहले एग्जाम्पल की हम बात करें तो मीठे पेय पदार्थ और ओबेसिटी। दूसरे एग्जाम्पल में दो वेरिएबल्स हैं, धूम्रपान और कैंसर। तीसरे एग्जाम्पल में अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम्स। चौथे एग्जाम्पल में हंगर और क्राइम्स। और पांचवें एग्जाम्पल में अभ्यास, प्रैक्टिस और परफेक्शन। तो सिंपल हाइपोथेसिस के द्वारा वेरिएबल अर्थात इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के मध्य संबंध के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि दोनों का क्या संबंध है। दूसरी जो प्राकल्पना का स्वरूप है, प्रकार है, वो है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जटिल प्राकल्पना। अ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जटिल प्राकल्पना दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध और दो अथवा दो से अधिक निर्भर चरों यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का परीक्षण करती है। दो अथवा दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के मध्य क्या संबंध है और दो अथवा दो से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स के मध्य क्या संबंध है। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी प्राकल्पना के द्वारा दो अथवा दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दो अथवा दो से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ जो संबंध है उनका परीक्षण किया जाता है तो उसे हम जटिल प्राकल्पना कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ओवरवेट एडल्ट्स who value longevity and seek happiness are more likely than other adults to lose their excess weight and feel a more regular sense of joy। यहाँ जो वेरिएबल्स हैं, एक तरफ तो ओवरवेट एडल्ट्स हैं, वो एडल्ट लोग हैं जिनका वजन सामान्य से बहुत ज़्यादा है। दूसरी ओर वो एडल्ट्स हैं
जो वजन जिनका कम है। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। सेटिस्फेक्शन इज हायर अमंग पेशेंट्स हु आर ओल्डर एंड हु आर ड्वेलिंग इन रूरल एरिया देन दोज हु आर यंगर एंड हु आर ड्वेलिंग इन अर्बन एरिया। ऐसे मरीज जो अधिक उम्र के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनके अंदर जो संतुष्टि का भाव देखा जाता है, सेटिस्फेक्शन देखा जाता है, वो सेटिस्फेक्शन उन मरीजों से ज़्यादा है जो युवा हैं और जो नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स में दो अथवा दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का दो अथवा दो से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ क्या संबंध है, इस बात को दर्शाया गया है। सो इन बोथ दीज एग्जाम्पल्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू independent variables with two or more than two dependent variables had been shown. प्राकल्पना का अगला प्रकार है, अगला स्वरूप है एम्पिरिकल हाइपोथेसिस अर्थात अनुभविक प्राकल्पना। An empirical hypothesis is a very important type and form of hypothesis. It is the working hypothesis that comes to life when a theory is being put to the test using observation and experiment. It's no longer just an idea or notion. It's actually going through some trial and error and perhaps changing around those independent variables. प्राकल्पना का प्रत्येक स्वरूप, प्रत्येक प्रकार महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुभविक प्राकल्पना जो कि एक कार्यकारी प्राकल्पना भी होती है, ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कार्यकारी प्राकल्पना अर्थात एम्पिरिकल और अनुभविक प्राकल्पना के अंतर्गत किसी थ्योरी, किसी सिद्धांत का परीक्षण किया जाता है और इसके लिए ऑब्जर्वेशन, अवलोकन और किसी एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। एम्पिरिकल हाइपोथेसिस केवल एक विचार नहीं है, अपितु ये ट्रायल और एरर के माध्यम से किए जाने वाला, टेस्ट किए जाने वाला एक प्रयोग है, एक प्राकल्पना है। एम्पिरिकल के एग्जाम्पल्स हैं, रोजेज वाटर्ड विथ लिक्विड विटामिन बी ग्रो फास्टर देन रोजेज वाटर्ड विथ लिक्विड विटामिन ई। गुलाब पर परीक्षण किया जाता है या परीक्षण किया गया। उदाहरण के लिए गुलाब के जो फूल होते हैं, कौन से गुलाब के फूल तेज गति से बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ गुलाबों में विटामिन बी, लिक्विड विटामिन बी से सींचा गया। दूसरी ओर कुछ गुलाब के फूलों को लिक्विड विटामिन ई से सींचा गया और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पता लगाया गया कि रोजेज वाटर्ड विद लिक्विड विटामिन बी, इट मीन्स दोज रोजेज that were watered with liquid vitamin B grew faster. So on this basis, in this way, it was
finalized, it was found that roses watered with liquid vitamin B grow faster than roses watered with liquid vitamin E. So, in this way, we can say that empirical hypothesis is somewhat different from the other forms of hypothesis, because in this hypothesis, some theory is tested through observation and experiment. Then comes probably the most important form of hypothesis, that is null hypothesis. अगला जो इसका प्रकार है वो है शून्य प्रकल्पना. शून्य प्रकल्पना शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्पना का प्रकार है. शून्य प्रकल्पना, null hypothesis, which is denoted by H0, exists when a researcher believes there is no relationship between the two variables. शून्य प्रकल्पना तब होती है जब दो वेरिएबल्स के बारे में अनुसंधान करता ये विश्वास करके चलता है कि दोनों वेरिएबल्स में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, और देयर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टेट अ साइंटिफिक हाइपोथेसिस. या फिर ये विश्वास करके चलता है कि दोनों वेरिएबल्स के बीच जो या तो संबंध है नहीं, और अगर है तो इतना कम ना के बराबर है कि सूचना का अभाव है, पर्याप्त सूचना नहीं है, इतनी सूचना नहीं है उनके संबंध के बारे में कि उसके आधार पर किसी वैज्ञानिक प्रकल्पना का निर्माण किया जा सके. दिस इज समथिंग टू अटेम्प्ट टू डिस्प्रूव और डिस्क्रेडिट. तो इस प्रकार से नल हाइपोथेसिस के द्वारा दो वेरिएबल्स के मध्य संबंधों को डिस्प्रूव किया जाता है. अप्रूव नहीं किया जाता, डिस्प्रूव किया जाता है. The null hypothesis is generally assumed to be true until evidence indicates. नल हाइपोथेसिस, शून्य प्रकल्पना को सामान्यतः माना जाता है कि ये सच है, जो बात है वो सच है. तब तक सच मानी जाती है जब तक कि कोई साक्ष्य उस बात को गलत सिद्ध ना कर दे. Similar to the case that a defendant of a jury trial is presumed innocent until proven guilty. ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि किसी केस में एक डिफेंडेंट को जूरी के द्वारा तब तक इनोसेंट मानकर चला जाता है, तब तक निर्दोष मानकर चला जाता है जब तक कि उसे दोषी सिद्ध न कर दिया जाए. दोष सिद्ध होने से पहले वो इनोसेंट है, दोष सिद्ध होने के बाद वो गिल्टी है. तो ठीक उसी प्रकार से नल हाइपोथेसिस में अनुसंधानकर्ता ये मानकर चलता है कि वेरिएबल्स के मध्य किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और यदि थोड़ा बहुत संबंध है भी तो वो उससे संबंधित कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे कि एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस को डेवलप किया जा सके. उदाहरण के लिए, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन माई हेल्थ ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन आई ड्रिंक ग्रीन टी ओनली और रूट बियर ओनली. पहला उदाहरण है कि जब मैं चाय पीता हूँ, ग्रीन टी पीता हूँ या रूट बियर पीता हूँ, तो मेरी हेल्थ में कोई चेंज नहीं आता, मेरी हेल्थ में कोई चेंज नहीं आता उस दौरान. इस चीज़ को तब तक सही माना जाएगा जब तक कि
वास्तव में ग्रीन टी पीने से या रूट बियर पीने से कोई चेंज अगर ना हो। सेकेंड एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कैफीन will not be able to memorize anything faster than those who do not drink caffeine। वो स्टूडेंट्स जो कैफीन का सेवन करते हैं वो कैफीन का सेवन ना करने वाले विद्यार्थियों की तुलना में चीज़ों को तेज गति से याद नहीं कर सकते। ये एक दो वेरिएबल हो गए, दोनों के बीच ये मान के चल रहा है कि कोई इससे संबंध नहीं है, और ये तब तक सही माना जाएगा जब तक कि कैफीन का सेवन ना करने वाले विद्यार्थी भी किसी चीज़ को मेमोराइज करना बंद कर दें। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से कहा गया कि जो स्टूडेंट्स कैफीन का सेवन करते हैं वो चीज़ों को ना सेवन करने वाले विद्यार्थियों की तुलना में तेज गति से याद नहीं रख सकते, अर्थात वो भूल जाते हैं। कैफीन विस्मृति लेकर आती है उनके अंदर। नल हाइपोथेसिस का अपोजिट और नेक्स्ट जो प्रकार है वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वैकल्पिक प्रकल्पना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय H1। Alternative hypothesis enters the scene when, in an attempt to disprove a null hypothesis, researchers seek to discover an alternative hypothesis। वैकल्पिक प्रकल्पना तब अस्तित्व में आती है जब एक अनुसंधानकर्ता नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करता है, शून्य प्रकल्पना को, और उसको डिस्प्रूव के अटेम्प्ट के दौरान वो किसी एक वैकल्पिक प्रकल्पना की खोज करता है। किसकी है पर यह हो सकता है। Alternative hypothesis is usually consistent with the research hypothesis because it is constructed from literature review, previous studies, etc. वैकल्पिक प्रकल्पना रिसर्च हाइपोथेसिस से संबद्ध होती है क्योंकि ये प्रकल्पना रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पूर्व अध्ययन, साहित्यिक अध्ययन, इसके अध्ययन के परिणाम स्वरूप ये प्रकल्पना निर्मित की जाती है। However, the research hypothesis is sometimes consistent with the null hypothesis। बहरहाल ये नहीं भूलना चाहिए कि कई बार जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो शून्य प्रकल्पना से संबद्ध भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, my health improves during the times when I drink green tea only। मेरे स्वास्थ्य में सुधार केवल उस समय के दौरान होता है जब मैं ग्रीन टी पीता हूं, एज अपोज टू रूट बियर ओनली। रूट बियर नहीं। स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कैफीन विल बी एबल टू मेमोराइज इंफॉर्मेशन फास्टर देन दोज हु डू नॉट ड्रिंक कैफीन। तो दोनों में ही विकल्प हैं। तो दो बातें ध्यान रखनी है वैकल्पिक प्रकल्पना में कि ये तब आती है जब एक अनुसंधानकर्ता नल हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करता है, डिसअप्रूव करता है, और उसके स्थान पर किसी नई प्रकल्पना, नए अल्टरनेटिव को, नए विकल्प को खोजता है। देन कम्स लॉजिकल हाइपोथेसिस। अगला जो इसका प्रकार है वो तार्किक प्रकल्पना। अ लॉजिकल hypothesis is a proposed explanation possessing limited evidence।
Generally, you want to turn a logical hypothesis into an empirical hypothesis, putting your theories or postulations to the test. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तार्किक प्राकल्पना ये एक प्रस्तावित एक्सप्लेनेशन है, प्रस्तावित व्याख्या है, और इसके अंतर्गत लिमिटेड एविडेंस होता है, सीमित साक्ष्य होते हैं, और प्रायः देखा जाता है कि हम लॉजिकल हाइपोथेसिस को एम्पिरिकल हाइपोथेसिस में टर्न करते हैं और इसके द्वारा थ्योरीज को, पोस्टुलेशंस को टेस्ट किया जाता है। जैसे केक्टी एक्सपीरियंस मोर सक्सेसफुल ग्रोथ रेट देन ट्यूलिप्स ऑन मार्स, सो इट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। देन आई एम कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप एंड फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस विच इज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, सांख्यिकीय प्राकल्पना। A statistical hypothesis is an examination of a portion of a population. इसके अंतर्गत जनसंख्या के किसी भाग का परीक्षण किया जाता है। For example, if a researcher wants to conduct a study on the life expectancy of the people of Rajasthan, उदाहरण के लिए यदि एक अनुसंधानकर्ता राजस्थान के लोगों की जीवन प्रत्याशा पर अध्ययन करना चाहता है, he will have to examine every single resident of राजस्थान। इसके लिए उसे राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षण करना पड़ेगा। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ये व्यवहारिक नहीं है। Therefore, he would conduct his research using a statistical hypothesis। चूंकि सभी का परीक्षण करना संभव नहीं है, राजस्थान बहुत बड़ा है, तो इसके लिए वह अनुसंधानकर्ता, वह रिसर्चर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, या ये कहना चाहिए कि राजस्थान की जनसंख्या का एक सैंपल, निदर्शन लेकर के अपना अध्ययन करेगा, उस स्टडी को कंडक्ट करेगा। तो इस प्रकार से थ्रू दिस लेक्चर आई हैव ट्राइड टू डिस्कस the various forms and types of statistical hypothesis. Obviously, for a research scholar, for the students of social research, social sciences, it's very important, very essential to know about hypothesis and its various forms and types.